Hello, myself Umashri Mathur from Kohinoor Kids Secondary School Academy, Neemka, Thana. Good morning, dear students. How are you? I hope that you are all well. Dear students, here is the book of class 5th Environmental Studies, Apna Parivesh. Dear students, in our previous video, we read and learnt from chapter 7 about trees, their magnificence, Chipko movement, and today we will learn about forest, conservation of forest, food chain, and grasslands or orans, national parks, sanctuaries from chapter 7. Dear students, here is the chapter 7 magnificence of trees for you. But before we start it, we recall it once again. Magnificence of trees. The Chipko movement started by Amrita Devi Vishnoi. Conservation of forest resources, ancient culture of Rajasthan. Dear students, on the occasion of New Year, your birthday, or any other special day which you consider important, plant one tree and make a resolution to raise it. Take care of it properly. In this way, we all together can save and conserve trees. बच्चों, नए वर्ष के मौके पर या फिर आपका बर्थडे या कोई फैमिली में और भी कोई अदर इवेंट या स्पेशल डे हो जिसको कि आप बहुत ज़्यादा ख़ास मानते हो, तो आपको कम से कम एक प्लांट जो है, एक ट्री जो है उसको प्लांट करना चाहिए। और जो है इनको जो रेस करने के लिए आपको रिजोल्यूशन यानी तरीके भी अपनाने चाहिए। आपको इसकी प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए। इस तरह से हम सब मिलके ट्रीज को सेव और कंजर्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दैट यू नो व्हाट इज ए फॉरेस्ट। A forest is a land area covered with trees, shrubs, herbs, and in which wild animals live in. बच्चों, क्या आप जानते हैं कि फॉरेस्ट यानी जंगल क्या होते हैं? फॉरेस्ट एक ऐसा लैंड एरिया होता है जिसमें कई तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे प्लांट्स, ट्रीज, शब्स, हर्ब्स और एनिमल यानी वाइल्ड एनिमल उनके अंदर रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन द टेबल given below, the names of different sanctuaries of Rajasthan are mentioned, and in front of them are the names of the districts where they are situated. Take a map of Rajasthan state and mark those districts in which these sanctuaries are located. Dear students, नीचे एक टेबल दी हुई है जिसमें कुछ जो है डिफरेंट सेंचुरीज़ के नेम दिए हुए हैं जो कि राजस्थान में हैं, और उनके फ्रंट में जो है आपको डिस्ट्रिक्ट के नेम बताने हैं जो कि जिस एरिया में वो लोकेटेड या सिचुएटेड हैं। So dear students, here you can observe the map of Rajasthan. There are 33 districts in Rajasthan state. Rajasthan is the biggest and largest state of the India. Students, dear students, here is a fact for you for not notice that this map of Rajasthan is not based on scale. Here is a table given for you, park and sanctuaries and districts where
they are situated. The first one is Ranthambore National Park Tiger Reserve, and it is situated in Savai Madhopur district of Rajasthan. The second one is Kevla Dev National Park Ghana Bird Sanctuary, which is situated in Bharatpur. The third one is National Desert Park, and it is situated in Jaisalmer, Barmer, both of district. The next one is Sariska National Park, and it is situated in Alwar district. Food chain. Gauri, who feeds the animal living in the forest? गौरी ने पूछा कि कौन है लोग जो हैं एनिमल्स को जो है फॉरेस्ट में जो है फीड करते हैं. मदर टोल्ड हर दैट द हर्बीवर्स एनिमल्स इन द जंगल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज एंड द कार्निवर्स एनिमल्स फीड अपॉन अदर स्मॉल एनिमल्स. माँ ने गौरी को बताया कि हर्बीवर्स जो एनिमल होते हैं जंगल में वो अपना फूड है वो प्लांट से लेते हैं और ट्रीज से लेते हैं, और जो कार्निवर्स एनिमल्स होते हैं वो अपना जो फूड है अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं अदर स्मॉल एनिमल्स पर. लाइक दैट एट फर्स्ट plants or carrots eaten by rabbit, and rabbit is eaten by fox, and fox is also eaten by lion. Thus this chain regulates and rotates, so the balance of the environment keep fit for all living beings. यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि सबसे पहले आपको दिखाई दे रही हैं कैरेट्स या प्लांट्स को जो है वो रैबिट खा जाते हैं, रैबिट को जो है फॉक्स खा जाती है और फॉक्स को लॉइन्स खा जाते हैं. तो इसी तरह जब लॉइन कंजप्शन हो जाता है तो ये वापस जो है प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर प्लांट्स को रैबिट खाते हैं, रैबिट को फॉक्स खाती है और फॉक्स को लॉइन खा जाते हैं, और वापस लॉइन का कंजप्शन होने के बाद में वापस न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं. इस तरह से ये बैलेंस है हमारे नेचर में, वो हमारे एनवायरनमेंट को फिट रखने के लिए और बैलेंस्ड रखने के लिए सर्कुलेशन चलता रहता है. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फूड चेन, और इसी को फूड चेन कहा जाता है, यानी कि खाद्य श्रृंखला. List the name of animals that eat the food mentioned in the table. Food and name of the animal that eats us. यहाँ आपको कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा एनिमल इनको खाता है. प्लांट्स, ऑल herbivorous animals. Deer, herbivorous animals. Deer by fox, lion, leopard, etc. Hen by dog, cat, human. Seed by hen, and rat by cat, dog, etc. and peacock also. हम इसको एक बार फिर से अच्छी तरह से समझ सकते हैं. जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स को रैबिट खा लेते हैं, या उसको काऊ, बफेलो, गॉट, शीप ये खा लेते हैं. डियर है, डियर को जो है शेर, बाघ, चीता ये खा लेते हैं. हैन जो है, हैन को डॉग खा लेते हैं, फॉक्स खा लेते हैं. सीड हैं, उनको हैन है, बर्ड है, पिकॉक है, कई तरह के जो बर्ड्स हैं वो इनको खा सकते हैं, और ऑल्सो ह्यूमन भी खा लेते हैं. रैट हैं, रैट को तो आप जानते हैं कि डॉग, कैट, पिकॉक जो हैं उनको खा लेते हैं. तो इस तरह से जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा लेता है, या प्लांट से ये शुरू होता है, प्लांट्स को पहले एक अदर स्मॉल एनिमल खा लेते हैं या हर्बीवर्स एनिमल खा लेते हैं, उसके बाद में जो है
वो हर्बीवर्स एनिमल, अगर डियर हो तो डियर को जो है फॉक्स खा लेती है, फिर फॉक्स को जो है लॉइन खा लेते हैं। तो इस तरह से, और जब लॉइन का कंजप्शन हो जाता है तो उसके आफ्टर जो है वापस न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं, और इस तरह से जो है ये फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला है वो रेगुलेट होती रहती है। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड टेल हु ईट्स whom. At first, plants or grass eaten by grasshopper. Grasshopper always eaten by frogs, and frogs are eaten by snake, and snake eaten by vulture or kite. When vulture or kite is consumed, the grass grew again, and thus the food chain regular rotating. Dear students, I know that you are all thinking about that what is a food chain. So here is your answer for food chain: the relationship between plants and animals on the basis of their food is known as food chain. And in other words, we can say the relationship between plants and animals for survival is known as food chain. प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है अपने फूड के लिए, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और ये ही जो उनकी जो रिलेशनशिप है उसको फूड चेन बोला जाता है. थिंक एंड राइट द आंसर्स. व्हाट डज ए पैरट ईट? ए पैरट ईट ग्रीन चिली एंड beans, guava, etc. What does a cow eat? Grass, grains. What does a squirrel eat? Grains and nuts. So dear students, here is our chapter 7 is completed. In this chapter we learnt trees are very important for us, therefore we should नॉट कट दैम. प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए हमें उन्हें नहीं काटना चाहिए. फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज देयर इज़ ए ट्रेडिशन ऑफ देयर वर्शिप इन डिफरेंट रीजन्स. पेड़ों के कंजर्वेशन के लिए यानी कि वृक्षों को बचाने के लिए जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है कुछ ट्रेडिशंस, परंपराएं होती है उनकी पूजा करने की. Next one is अमृता देवी sacrificed her life to save the खेजरी trees. अमृता देवी ने जो है खेजरी ट्रीज को सेव करने के लिए अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान कर दिया था. By taking inspiration from this, the चिपको मूवमेंट started. और इसी से इंस्पायरेशन लेके और बाद में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा जो है चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया. In a forest, one organism eats the other. In this way, the food chain is formed. फॉरेस्ट में जो यानी जंगलों में है एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है. इस तरह जो है फूड चेन फॉर्म्ड यानी बनती है, और जो है एनवायरनमेंट में जो है बैलेंस बना रहता है. क्योंकि आपने सोचा है कि अगर फूड चेन ना हो तो क्या हाल हो जाएगा हमारे एनवायरनमेंट में, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से इससे अफेक्टेड होगा. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो ग्रास है उसको ग्रास होपर नहीं खाएंगे तो सोचो अर्थ पे इतनी ग्रास हो जाएगी कि किसी भी ह्यूमन बीइंग या जो ऑर्गेनिज्म है उनके रहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं बचेगी. अगर ग्रास होपर को अगर फ्रॉग्स नहीं खाते हैं तो इतने ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में जो है ग्रास होपर्स हो जाएंगे कि अर्थ पे जो है ह्यूमन और अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका रहना मुश्किल होगा, और ये हर चीज़ को जो है नष्ट कर देंगे. अगर बहुत ज़्यादा फ्रॉग हो जाएं और उनको स्नेक नहीं खाएंगे तो अर्थ पर
जितने ह्यूमन बीइंग नहीं हैं उससे ज़्यादा फ्रॉग्स हो जाएंगे और इस तरह से हमारी जो है अर्थ वो नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो है इसका जो नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो है स्नेक। अगर स्नेक को वल्चर या काइट नहीं खाते हैं तो फिर इतने ज़्यादा स्नेक हो जाएंगे कि अर्थ पर कहीं भी जगह नहीं बचेगी। और अगर वल्चर का कंजप्शन नहीं होता है, वल्चर बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि एक ऐसा बर्ड होता है कि जिसको कोई नहीं मार सकता, यानी कि कोई अदर एनिमल इस पर अटैक नहीं कर सकता सिर्फ वल्चर्स के अलावा या किसी बर्ड के अलावा, बिकॉज कि ये एक बर्ड है और ये फ्लाई करता है और इसकी वजह से जो है लैंड एनिमल्स इस पर अटैक नहीं करते हैं। जब वल्चर बूढ़ा हो जाता है तो ये भूख की वजह से या फूड नहीं मिलने की वजह से है खुद ही जो है डेड हो जाता है। और डेड होने के बाद इसकी बॉडी जब कंजप्ट हो जाती है तो फिर वापस से जो है उससे ग्रास जो है वो ग्रो होती है। तो इस तरह से फूड चेन है वो हमारी अर्थ पे जो है नेचर और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जो है एक रिलेशनशिप है बैलेंस को बनाए रखने के लिए और अर्थ के एक्सिस्टेंसी के लिए। Dear students, here is a very good slogan for you. Plant trees, save forest, यानी कि पेड़ लगाओ और जंगलों को बचाओ, because plants and forests both are very important for us, because there are many benefits we gain or get from plants. Thank you dear students, thank you for watching my video.